Maulana Azad, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Ma'am is associated with the Department of Management and Commerce. She is the Dean Academic Affairs of Maulana Azad National Urdu University. She has completed her PhD from Osmania University in Business Management and has done her MBA from the same university in Human Resource Management. She has also completed a faculty development program from Indian Institute of Management, Ahmedabad, and she has more than 20 years of teaching experience. She has also completed a UGC-sponsored major research project on the title "A Study of Performance Management Practices in IT Sector in Hyderabad." And she has been, 5 PhDs have been awarded under her supervision, and she has guided 5 scholars for their MPhil dissertations. Currently, 3 students are pursuing their PhD under her supervision, and she has authored 2 books and has delivered extensively several lectures throughout the country on various seminars and conferences. She has published several research papers in national and international journals of repute, and we are very pleased to have you, ma'am, with us. And on behalf of Aligarh Muslim University Center, Murshidabad, I would like to wholeheartedly welcome you to this 8 days uh, NEP 2020 orientation cum sensitization program. Welcome, madam. आदाब, a very good afternoon to all of you. And Dr. Syed Atif Jilani साहब, आपका बेहद शुक्रिया इतने अच्छे तारुफ के लिए for the good introduction. And at the outset, I thank the UGC MMTTC team for extending the invite to me to conduct this session on student diversity and inclusive education. So dear participants, I also welcome you all for this session on student diversity and inclusive education. Am I audible, please? Yes, ma'am. Yes. So I would like to hear from the participants whether my session should be in English or bilingual, or it should be in Hindi or Urdu. What do you want? Bilingual. अच्छा ठीक है, चलिए bilingual कर देते हैं. तो a brief note, as we are all teachers, we are here for a mission. We are important stakeholders of a higher education, which is second largest in the world. A few days ago, we were the third largest, next only to United States of America and China. But today, we are all very proud stakeholders of a system which is second largest in the world. That is the higher education system of our country. So today, there are a lot of changes in the technology and communication technology also. Because of this, we are talking of the term global village. The whole world has become a global village. The boundaries are no more existing as it used to be earlier. In this scenario, we just don't produce responsible citizens, but global citizens. With the students today will be working in a diverse scenario. We can see around us so many multinational corporations working, and then the Indian diaspora, which is there across the world. I think excepting 6 or 7 countries. But then wherever you go, you will find the Indian diaspora working in various positions, doctors, engineers, software engineers. Let me refer here that in United States of America, 1 among the 6 software engineers is an Indian. Now see, this is only possible because we have the second largest higher education system. We as teachers are not just teaching them, but we are facilitators, we are mentors and important stakeholders in the society and nation building. The brand building of any institution. Let me ask you, in the NAAC or in the NIRF ranking, teachers' achievements or the publications, are there citations taken into consideration or not? Yeah, please tell me. A good institution is known by its teaching faculty. Yes or no? I want some response. Though this is an online session, we will try to make it as interactive as possible. Please, dear participants, do participate in the discussion. Now, UGC, MMTTC, AMU has taken very, very sincere efforts to invite the resource persons for your benefit. These are not recorded sessions, please, but they are live sessions. So do participate, please. Am I audible? Yes, ma'am. जी, तो थोड़ा सा बीच में आप लोग रेस्पॉन्स देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा.
तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे हायर एजुकेशन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है टू द कंट्री एंड आउटसाइड वर्ल्ड, एंड व्हाट इज आवर रोल एज HEIs, higher education institutions, and specifically as teachers. What is student diversity? What are the reasons for this diversity? What are the causes? I mean, what are the implications of this diversity? And then how to handle this diversity? And then we will also discuss what is inclusive education and how can teachers facilitate in bringing about inclusive education in the institutions of higher learning. This will be the flow of my presentation. And then if time permits, I will also talk to you about the academic bank of credits and registration of students, how it will facilitate student mobility and then credit transfer. Is that okay? So let me share my presentation, please, with you all. Is the presentation visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, let me go to the beginning. I'm sorry, y'all didn't join, so I was just browsing to whether to add something. We'll just soon reach there. Yeah. So welcome once again to this theme, today's presentation on discussion on student diversity and inclusive education. This is one of the 8 themes of NEP orientation and sensitization programs. Now let us first discuss education. Education, here I quote Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. तो ये जो I unquote नेल्सन मंडेला जी का ये जो कोटेशन है विद्या को लेकर, आप सभी लोग इससे एक्सेप्ट करेंगे और एग्री भी करेंगे कि विद्या यानी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यस और नो? क्योंकि हमें जो ज्ञान मिलता है क्लासरूम्स में, जो हम इस ज्ञान के जरिए से हम समाज को समझ सकते हैं, इंडिविजुअल को समझ सकते हैं और दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में शिक्षा हमारी बहुत सहायता कर सकता है। और इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर गोल्स इन द विजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड जस्ट सोसाइटी। अगर कोई भी समाज की आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक्सेस टू एजुकेशन, उनमें कुछ लोगों को मत रोकिए, सभी को शिक्षा की तरफ जाने दीजिए और शिक्षा को हासिल करने का प्रयास गवर्नमेंट्स को और देश को करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें कि SDG 4 है क्वालिटी एजुकेशन। और ये क्वालिटी एजुकेशन क्या है? ये एजुकेशन, ऊपर हमने जो कहा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, तो इसी के जरिए, इसी के माध्यम से हम लोग जो हमारे बाकी के SDGs हैं उनको भी हम हासिल करने में ये हमारा SDG 4 हमारी सहायता कर सकता है। तो SDG 4 क्या है? इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल। तो जब हम एजुकेटेड होते हैं, हमारे पास ज्ञान होता है, तो जो बाकी के 16 और SDGs हैं हम उनको आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्या कोई बता सकते हैं कि बाकी कितने SDGs हैं कुल मिलाकर? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यस, एनीबडी? भारत सरकार ने 2015 में इस मिशन में ज्वाइन किए थे उन्होंने, और 2030 तक हमको इन गोल्स को हासिल करना है। दिस इज द टारगेट। सो आई विल ब्रीफली शेयर यू द SDG goals. Please have a look at it. There are 17 sustainable development goals. What is sustainability? Sustainability is जो हमारे पास resources हैं उनको carefully, बहुत safely and securely use करना है और आगे के generations के लिए उनको बहुत ही safe रखना है, उनको प्रदूषित नहीं करना है। We should not pollute or destroy the resources which are available to us. We need to safely and securely preserve them for the future generations. So SDG 1 is no poverty. 2 is zero hunger, 3 is good health and well-being, 4 is quality education, 5 is gender equality, 6 is clean water and sanitation, 7th sustainable development goal is affordable and clean energy, 8th is decent work and economic growth, 9th is industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate change. 14th SDG is life below water, and 15th is life on land, 16th is peace, justice, and strong institutions, and 17th is partnerships for the goals. So through partnerships, we can achieve all these goals. So our country joined this
in 2015, and then by 2030 we aspire to achieve all these 17 goals which are laid down by the United Nations. So we have from 2016 onwards, we have till 24 the SDG progress report. You can browse it and then check the statistics and the reports also by clicking this thing. So we will not go much about it, and we will straightaway talk about diversity. And then what is higher education? Higher education एक ऐसा important public sphere है जहाँ के public matters discuss होते हैं और समाज का future direction shape ले सकता है। और उच्च शिक्षा बहुत ही important है collective capacities को उभारने में और इनके विकास के लिए। SDG places education at the center of efforts towards developing sustainable communities and society. अभी मैंने कहा कि समाज को हम sustainable कैसे बना सकते हैं और अलग अलग communities को भी हम sustainable बनाने के प्रयास में ही हम ये 17 goals को United Nations ने बनाया है और बहुत सारे देशों ने, जो भी United Nations के member countries हैं, सभी ने इसको अपनाया है और इसको वहां तक पहुंचने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज हायर एजुकेशन। अब बात आती है ये जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा की संस्थानें हैं, वो कहाँ पर है। हर इंडिविजुअल को जो हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लेते हैं 18 से 23 साल के बॉयज एंड गर्ल्स, उनको कैसे यहाँ तक लाया जाए, रिमोट एरिया से, रूरल एरिया से, जो बिल्कुल कट ऑफ है, उन सबको कैसे मेन स्ट्रीम करें। तो हम यहाँ बात करेंगे एक्सेस टू हायर एजुकेशन की। So no one should be denied the opportunity to access education based on their individual characteristics, जैसा कि उदाहरण के लिए कास्ट, क्लास, रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फिजिकल एबिलिटी और ज्योग्राफिकल लोकेशन और उनकी भाषा के आधार पर उनको कभी भी उच्च शिक्षा में की ओर बढ़ने की तरफ हमको रोकना नहीं चाहिए। और कभी भी शिक्षा में इनइक्वालिटी होती है तो दूसरे फियर्स में भी, जैसा कि हेल्थ है, इनकम है और एम्प्लॉयमेंट में भी इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग शिक्षा हासिल करेंगे उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उतनी ही ज्यादा हमारी इनकम जनरेशन होगी। और जब लोग पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षा उनके पास होती है, तो वो समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, परिवार को समझते हैं, समाज और देश को भी समझते हैं और खुद भी ठीक ठाक अपने जीवन को बिताते हैं और दूसरों को भी उसमें वो सहायता करते हैं। एजुकेशन इनइक्वालिटीज अगर एक पीढ़ी में होते हैं तो फिर वो दूसरी तीसरी पीढ़ी तक वो चलते रहते हैं, लेकिन एक पीढ़ी ने अगर शिक्षा के महत्व को जान लेते हैं और शिक्षा को अपना लेते हैं, शिक्षित बन जाते हैं, तो फिर आगे की और पीढ़ियां भी उसी को अपनाएंगे एंड वी विल हैव एजुकेटेड जनरेशंस ऑफ लर्नड एजुकेशन जनरेशंस। प्राचीन भारत में यानी प्राचीन काल में ये सारे जो हम देख रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस, ये सब नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास दिक्कतें थी, जैसे महिलाएं वहां तक गुरुकुल तक नहीं पहुंच। वी हैड द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल में जाना राजा महाराजा या ऊंची जाति के लोगों के ही बस की बात थी जो कि अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज भारत सरकार यानी बहुत सारे देशों में सरकार क्या कर रही है, इक्विटी मेजर्स कर रही है। जो अब तक पिछड़े रहे हैं, जिनको मौका अभी तक उच्च शिक्षा की संस्थानों में जाने का अवसर नहीं मिला है, उनको वो अवसर देने के लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ फ्रीशिप्स इन्होंने लागू किए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों में भी और देश में भी ये जो सुविधाएं हैं, इनके माध्यम से लोग क्या कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में एडमिशन ले रहे हैं और अपने आप को शिक्षित बना रहे हैं। अब देखते हैं कि ये उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, इसका बदलता हुआ क्या सिनेरियो है। Now we have observed that there is a massive expansion of student enrollments in higher education over the last few decades. All of you agree? Yes or no? Yes, ma'am. Can anyone tell me what is the present gross enrollment ratio, GER? The gross enrollment ratio, any idea? Okay, let us visit the website of All India Survey of Higher Education and look at it. What is the scenario? We have the latest reports of 21-22. Further also we can, I think this is not accessible, but we'll try to. Massive expansion of student enrollments in higher education over the last few decades. How is it possible? How it has come? So you can see the portal aishegov.in, all of you. Yes? Yes, ma'am.
या द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एज पर 21-22 इज 28.4, लेकिन हमने 21-22 का ये रेशियो है, 22-23 में और 23-24 में भी हमने एडमिशंस किए हैं, तो हो सकता है हमारा GER 28.8 अब हो गया होगा। ये हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, ये हमारा पीपल टीचर रेशियो है। और भी स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, कुल यूनिवर्सिटीज 21-22 में क्या है, कॉलेजेस हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या है और टीचर्स की संख्या भी हमने अभी देखी है। तो ये है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का पोर्टल। हमारे पास जो फाइनल रिपोर्ट है 21-22 की है, ये मैंने डाउनलोड की है, आपसे शेयर करती हूँ। अभी पीपीटी में हमने देखा कि पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट के एनरोलमेंट्स हुए हैं और उसमें बहुत ज्यादा इक्विटी मेजर्स भी आए हैं। वो किस प्रकार है वो हम अभी देखते हैं। सॉरी, can you see the screen please? 3.2.1 screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Level wise estimated enrollment. So we will study here what has been the state UT wise student enrollment at various levels during the past 5 years। जैसा कि 21-22 के पहले 17-18 से हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप लोग बॉक्स 9 लेवल वाइज एनरोलमेंट और इसका कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसको हम बोलते हैं, ये स्टूडेंट एनरोलमेंट है। और यहाँ पर हमारे पास लेवल है। PhD में हम देखते हैं 17-18 में 1,61,412 हमारा एनरोलमेंट रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हमारा हो गया है 2,12,568। और PG में देखिएगा एनरोलमेंट किस तरह बढ़ता जा रहा है और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। सो CAGR PhD का 7.1 है और PG का 6.1 है। हम UG भी देख लेते हैं। UG में भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है एनरोलमेंट? कैन एनीवन टेल मी? लुक एट रो नंबर 3, मैंने कर्सर रखा है। हैज इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? Increase. Yes, it is increased. डिप्लोमा और इंटीग्रेटेड में भी वही है। तो यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर अपने प्रेजेंटेशन से। फीमेल एनरोलमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। मैं आपको ग्राफ शेयर करती हूँ। ये देखिए 17-18 से लेकर के 21-22 तक फीमेल एनरोलमेंट जो है लगातार बढ़ता रहा है ना? Yes, there is a steady increase in female enrollment, because why I'm specifying is we will discuss this again in the subsequent slides. So the share of female enrollment is 55% of the increase in overall enrollment. ये बहुत ही remarkable achievement है। अब हम देखते हैं सोशल कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट, बिकॉज फीमेल एनरोलमेंट सोशल कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट क्या करता है? डाइवर्सिटी को, स्टूडेंट डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। ध्यान दीजिए, SC कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि पिछले फीमेल एनरोलमेंट SC कैटेगरी में बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए 51% इंक्रीज इन फीमेल SC एनरोलमेंट 2014-15 से हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ST कैटेगरी भी देख लेते हैं। यहाँ भी हम क्या देखते हैं, 17-18 में से लेकर के 21-22 तक हमारा जो फीमेल एनरोलमेंट है जी बढ़ गया, ये इंक्रीज होता रहा है, बढ़ रहा है। वेरी गुड। OBC कैटेगरी ऑल्सो द सेम। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं थोड़ा सा। अभी हम माइनॉरिटी भी एक कैटेगरी है, लेकिन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो ये डेटा हम जो देख रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो रिपोर्ट है ना, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की सर्वे की रिपोर्ट है। हमने स्टूडेंट एनरोलमेंट को देखा, ऑल इंडिया सर्वे देखा ना। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, वो टेबल पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। आपको अगर कोई डेटा चाहिए तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपको समरी स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ये हमने आपको ग्राफ में दिखा दिया है, दिखाया था ना, ये देखिए। तो चलिए अब इसको यहाँ क्लोज करते हैं और अब चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। सो मैं कुछ ही
समय पहले हमने ये डिस्कस किया कि वी आर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ 56,000 इंस्टीट्यूशंस admitting 43 million students and taught by 1.5 million teachers. ये हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत में भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जैसे कि तक्षशिला, जिसको हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जिन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च के बारे में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, और हमने स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को दुनिया के अनेक देशों से यहाँ पर इनको होस्ट किया था. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हॉलिस्टिक लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया. तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है बिरमाउंट रिमेन्स. ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला यूनिवर्सिटी का हिस्सा है. कैन एनीवन टेल मी वेयर इज दिस यूनिवर्सिटी नाउ? दिस इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, बट प्रेजेंट वेयर इज इट? तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान. हाँ, पाकिस्तान में. थैंक यू सर फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स. पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर. आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, आप इस पे यूट्यूब में इसके वीडियोस देख सकते हैं. तो इट ऑक्यूपाइड ए स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन एंशिएंट ट्रेड रूट्स, लेकिन साथ साथ इन्होंने सेंट्रल एशिया, पर्शिया और मिडिल ईस्ट से बहुत सारे स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया था. और इसका जो प्राइम लोकेशन है, वी हैड स्कॉलर्स क्रिएटिंग अ vibrant multicultural environment that fostered intellectual exchange and cultural diversity. जब भी कोई स्कॉलर, कोई विद्यार्थी एक दूसरी जगह से, अपने राज्य से, अपने शहर से दूसरे शहर में जब हम जाते हैं, तो अपने साथ साथ हमारी संस्कृति को भी ले जाते हैं. नहीं ले जाते हैं? यस, यस. हमारा जो कल्चर होता है, हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, हमारी ज्वेलरी, ये सब चीजें क्या करते हैं, हम यहाँ से वहां ले जाते हैं और वहां की चीजों को हम अपनाते हैं. तो इसी तरह हमारा एक्सचेंज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी देश के अंदर और देश के बाहर भी इस तरह होता है ना. चलिए, अब हम बात करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि प्राचीन भारत की एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही है. यहाँ पर 100 से भी अधिक अध्यापक और 1000 से भी अधिक विद्यार्थी रहे हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे एमिनेंट स्कॉलर्स तैयार किए हैं. और यहाँ के स्कॉलर्स को विदेशों में बुलाया जाता था, और ये बेसिकली बुद्धिस्ट लर्निंग और बुद्धिस्ट कल्चर और रिलीजन को फैलाने के लिए ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी. क्या कोई हमारे साथी बता सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आज कहाँ है आज के दिन? एनी गैस? ढाका, बांग्लादेश. जी, ढाका, बांग्लादेश. नो सर, नॉट इन बांग्लादेश. हमारे भारत देश में ही है. शहर बता सकेंगे आप? एनीबडी एल्स प्लीज? चलिए, मैं राज्य बता देती हूँ. बिहार में है. और बता सकते हैं कहाँ है बिहार में? गया में. जी हाँ सर, गया में है. कभी जाना हुआ तो जाइए. मैं खुद भी जाना चाहती हूँ. बहुत ही अच्छी, मतलब इन प्राचीन ये जो हमारी विद्या की संस्थानें रही हैं, इनको देख करके बहुत हम गर्व महसूस करते हैं ना. हम लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं, तो हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए. चलिए, एक और यूनिवर्सिटी देखते हैं प्राचीन भारत की, नालंदा महावीरा. इसकी स्थापना गुप्ता एम्पायर में हुई थी, और इसको बहुत सारे इंडियन और जापानीज पेट्रन्स, बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट दोनों ने इसको सपोर्ट किया था. नालंदा एक ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट इंडिया नहीं, बल्कि एंशिएंट वर्ल्ड में रहा है. और प्रेजेंट इसका जो नालंदा का साइट है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. आज भी हम इसको नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं. और मैं तो समझती हूँ कि सभी लोग जानते होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है. बता सकते हैं? जी, बिहार में. हाँ, वेरी गुड. बिहार. देखिए, नालंदा सभी लोग जानते हैं, और 2014 में भारत सरकार ने इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया था. तो नालंदा भी कभी जाना हुआ तो जरूर जाएगा. इवन टुडे वी कैन बी वेरी प्राउड ऑफ इट. तो टू सम अप, हमारे भारत देश का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, उन्होंने हमें बहुत ही ग्रेट विद्वान दिए हैं, जैसे चरका, सुश्रुता, आर्यभट्टा, नागार्जुना, गौतमा, और यहाँ पर साउथ में तिरुवल्लुर जैसे महान विद्वानों को हमने देखा है, और उनका जो योगदान है आज भी हम उनको
प्रणाम करते हैं उनके योगदान को, और उनका जो ज्ञान रहा है वो डाइवर्स फील्ड्स में रहा है, जैसे कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस, सर्जरी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, नेविगेशन, योगा। आज भी हम नेशनल योगा डे मनाते हैं। पूरे विश्व में योगा को पसंद किया जाता है और अपनाया जाता है। हमारे फाइन आर्ट्स आज भी हमें हमारी एक पहचान देते हैं, चेस एंड मोर। तो हमारी जो भारत की संस्कृति और फिलॉसफी रही है, इट हैज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट ऑन द कंट्री। डू ऑल ऑफ यू एग्री? यस यस मैम। यस मैम। तो हम लोग चलिए, अब हम यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन क्या है भारत देश में, और प्राचीन भारत का क्या एक स्टेटस था विद्या को लेकर, ज्ञान को लेकर, ये सब हमने डिस्कस किया है। तब हम धीरे धीरे चलते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिटी की तरफ। डाइवर्सिटी है क्या ये समझते हैं, फिर हम हमारी विद्या के संस्थानों में किस प्रकार की डाइवर्सिटी हम देखते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछूंगी और बहुत सारा डिस्कशन भी करूंगी। तो मैं यहाँ पर डाइवर्सिटी के डेफिनेशन को कोट करती हूँ और पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिएगा। डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स to all the ways in which people differ, including primary characteristics such as age, race, gender, ethnicity, mental and physical abilities, sexual orientation, and secondary characteristics such as nationality, education, income, religion, work experience, language skills, geographic location, family status, communication style, experience, learning style, economic background, and work style. So this is the definition of diversity. Anybody having any doubts here? कुछ हमने छोड़ा तो नहीं जो कि diversity create करता है? Any characteristic did we forget in including here? Or is it okay, the components which are creating diversity or leading to diversity in general? Is that okay? Physical and secondary characteristics. Sure? Please tell me. Can we see a small video? Yes ma'am. अच्छा, ये Yes, ma'am. वीडियो बिल्कुल ही मतलब कोई नया नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए, हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे और मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो मैं शेयर कर लूं वीडियो आपके साथ? Yes, ma'am. चलिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। शन तरज थई म्यन तरज इकवट बनिए सन तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।
तुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை నన్నదనిగే నిన్నదనియా తీరిదంతే నమ్మదనియా నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর সৃষ্টি হো ওই কোতান তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালু ঐক্যতান મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा So, I suppose सभी लोगों ने इस वीडियो को कई बार देखा होगा पहले यस देखा मैम। होगा ना? यस मैम, जी। पहले दूरदर्शन में चलते थे। जी हाँ, तो लेकिन आज हम डाइवर्सिटी का डेफिनेशन देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद, अब हमने ये वीडियो देखा तो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। फिर बताइए, हमने जो डेफिनेशन में कंपोनेंट्स देखे थे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सभी इसमें थे इस वीडियो में आपने देखा। सो वाज देयर अ डाइवर्सिटी टू एज? एज वाइज डाइवर्सिटी थी इस वीडियो में? Yes, ma'am. ओके, और आप लोग बताइए ना, सभी कुछ मैं बता रही हूँ। थैंक यू मैम। और
मैम एज वाइज थी, स्टेट वाइज थी, वेरी और गुड कल्चर थी, प्रोफेशन वाइज थी मैम। जी, वेरी गुड। प्रोफेशन वाइज क्रिकेटर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, और वो Yes. जो farmers, नाव चला रहे थे। फिल्म स्टार्स जी, वेरी एंड गुड। फिशरमैन जी, वेरी गुड। और बताइए। एंड मैम इकोनॉमिक स्टेटस भी दिख रहा था। वेरी गुड। और सुनाइए जी। प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन हमने डिस्कस किया। प्रोफेशन, लैंग्वेज, एज, लैंग्वेज पे मैम, वेरी गुड। लैंग्वेज, यस सर, थैंक यू सर। लैंग्वेज, मैम ड्रेस कोड आल्सो देयर, कल्चर मैम, कल्चर, वेरी गुड। और बताइए। आप लोग अगर चाहें तो 1-2 मिनट के लिए जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तब तक के लिए आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग 30 लोग ही हैं तो ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। या प्लीज टेल मी व्हाट एल्स। और कुछ मैं सुनना चाहूंगी आपकी तरफ से। इस वीडियो का सारांश क्या है, मैसेज क्या है? चलिए इतना बता दिया। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय दिस वीडियो? मैम नेशनलिज्म के बारे में बात थी, आइडियाज थे। प्रणब विश्वास जी, थैंक यू। आपने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस मैम, एग्रीड ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस, वी ऑल एग्री विथ यू, इट वाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब चलिए इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम कितनी भी बार ये वीडियो देखते हैं, एक थोड़ा सा हमें अच्छी भावना आती है, अच्छा लगता है, लगता है ना? यस मैम, यस, इसकी धुन जो है वो हमेशा यूनिटी की तरफ जाती है, यानी आकर के वो जुड़ती है। अब हम चलते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। आप लोग अलग अलग डिसिप्लिन से होंगे ना? आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट, कुछ डिसिप्लिन यहाँ डिस्कस कर लें। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, मेरा सब्जेक्ट MBA है। एनीबडी फ्रॉम साइंसेस, आर्ट्स? yes ma'am, I am from English. Yes, ma'am. Okay, right. So we are teachers gathered here on this online platform through various disciplines. अब हम हमारे educational institutions में important stakeholders 3 होते हैं: teachers, then who are very important stakeholders in higher education institutions, college or university? Students, yes or no? Yes, students. Teachers and administrative staff. So forget about the teachers and administrative staff. अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स में आप लोग अपनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किस प्रकार की डाइवर्सिटी देखते हैं? क्या हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें? कैन वी डिस्कस? पहले मैं बता देती हूँ। वी हैव अ डाइवर्सिटी रिलेटेड टू, आप लोगों ने वीडियो में जेंडर वाला नहीं बताया, मेल एंड फीमेल दोनों थे ना? मैंने बताया मैम। अच्छा, मैं आपने बताया, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। अब चलिए हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैंने बताया फीमेल स्टूडेंट्स एंड मेल स्टूडेंट्स, और आप लोग बताते जाइए किस प्रकार की डाइवर्सिटी हम देखते हैं अपने स्कूल और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में। In our college, ma'am, there are different student, different type. Some come from Santal family. Yes. Some from minority family. Some from scheduled caste. Very good. Social category. Yeah. So we get students from different family backgrounds, no? Elite students, below poverty line students, middle class students. Do we get or not? Different income levels. And we also get students from rural background and urban background. Yes. And we have students who are fluent in English and who have studied in English medium and who are fluent in English, and others who have studied in their regional language like Marathi medium, Urdu medium, Tamil medium. Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. What else? Rural background, urban background. Anything else we are missing? Ma'am, their language may differ. Yeah, language, different languages, different cultures. मैम वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ स्लो लर्नर या एवरेज लर्नर्स भी होते हैं क्लास में। तारिक मैडम, आपने तो सही जगह पर लगा दिया अपना निशाना। वी हैव स्लो लर्नर्स एंड फास्ट लर्नर्स, ये मैं कहने वाली थी। तो हमारे पास कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है, स्लो लर्नर्स भी होते हैं। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट डाइवर्सिटी।
और अब हम ये भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है, फिर भी मैं रिमाइंड करवाती हूँ, द कॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज इक्विटी मेजर्स। हमने क्या किया है, जैसे वुमेन के लिए हम लोगों ने 33% रिजर्वेशन कुछ राज्यों में किया है। हम वुमेन के लिए एज रिलैक्स करते हैं ना वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, और उनको फ्री शिप देते हैं ताकि उनको भी हम मेन स्ट्रीम कर सके। प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में वुमेन के लिए इतने फैसिलिटीज नहीं थे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा इक्विटी मेजर करके हम उनके लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं या उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इसी तरह सोशल कैटेगरी में भी जब भी हम एडमिशन करते हैं, हमने क्या किया है, हम अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमने एडमिशन किया है ना। और कोई इक्विटी मेजर, कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को नहीं मिलती है ना। यस यस मैम। Yeah, so the reasons is massive enrollments और गवर्नमेंट की तरफ से जो इक्विटी मेजर्स हैं उसकी वजह से we have this diversity. Everybody wants to go to higher education system and acquire knowledge. अब ये diversity हो गई है। अब very important question to all of you. We all have agreed that there is a student diversity in our institution. Yes or no? Yes, ma'am. Yes ma'am. Now my next question to you is, in the video we all have seen that different cultures, different languages, different profession, different age, but there was unity in diversity, as one of our colleagues told. But do we have unity in diversity in our institutions? Frankly tell me yes or no. I will tell no. What about yours? Yes or no? Is there unity in diversity? मैम इट डिपेंड्स, क्योंकि कभी कभी ना कुछ इंस्टीट्यूशंस मैंने अगर आपसे पूछा है मैम कि यस और नो, इज देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नो मैम, नो मैम, ऑल ऑफ यू एग्री वी डोंट हैव, but then what is happening? There is no unity in diversity, there is a differential treatment. I will not call it discrimination, but a differential treatment. जैसे कि आप लोगों ने बताया, स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स। स्लो लर्नर्स क्या कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और फास्ट लर्नर्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह मेल एंड फीमेल में, जैसे हम कभी कोई प्रोग्राम होता है, कोई टीम बनाते हैं, लड़के नहीं चाहते हैं कि उस टीम में लड़की हो, एंड वाइस वर्सा। होता है या नहीं होता है? यस मैम, होता है, होता है। तो वाई, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? और इसीलिए आपने देखा होगा, मैं आपको स्लाइड भी लेके आई हूं आप लोगों के लिए, कि वहां पर क्या हो रहा है, ए सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सबकी तरफ से। अमंग स्टूडेंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट में क्या हो रहा है, हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस में एंटी रैगिंग सेल है। यस मैम है। हाँ, स्टूडेंट्स ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है। यस। ओके, SC/ST सेल है। नो मैम। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है। नहीं। हाँ, ये सब हमने क्यों हमको ये सब क्यों स्थापित करना पड़ा? क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम, पीपल आर नॉट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। उस वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, यस और नो? बट इन द इंस्टीट्यूशन हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हाउ? स्टूडेंट्स के स्टूडेंट में दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। टीचर्स क्या कर रहे हैं, स्लो लर्नर्स को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फास्ट लर्नर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, मेन स्ट्रीम करना चाहिए। सो देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन among students and between student and teacher and administrative staff. कई बार ऐसा होता है, ये बच्चे उनके पास जाते हैं, सर फॉर्म कैसे भरना है, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो उनको हैंड होल्डिंग नहीं करते, कहते बेटा अभी टाइम हो गया, अगले साल अप्लाई करना है। ऐसा होता है ना? Yes or no? Yes. हाँ मैम। So now what are the consequences of diversity and how to handle diversity? क्या हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखें और डिस्कस करें फिर? So I will share my presentation. Tell me if this is visible. मेरा presentation भी देख लेते हैं operator. Is the screen visible? Yes ma'am. हाँ, तो वीडियो हमने देख लिया ना, आगे चलते हैं। स्टूडेंट डाइवर्सिटी मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया था ना, SC/ST वाला, ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या है।
तो ये जो हम उनको अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एनी डिस्टिंक्शन, exclusion, limitation or preference being based on caste, ethnicity, gender, language, religion, political affiliation, and economic class. It has a purpose or effect of nullifying or impairing equality of access, participation, and outcome of higher education. So यहाँ पर दो टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो तो मैं बता दूंगी. What is the outcome of higher education? बच्चे स्कूल और कॉलेज क्यों आते हैं? Tell me. क्यों आते हैं? सिर्फ डिग्री लेने के लिए? For their all-round development. वेरी गुड. ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, डिग्री ज्ञान लेने के लिए, डिग्री लेने के बाद या तो सर्विस ज्वाइन करेंगे या तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे. तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट आपने जैसे कहा उसके लिए आते हैं. लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो क्या पॉसिबल है? कैन बी अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट? No, we cannot achieve. We will see some of the forms of discrimination. Positive discrimination मतलब जो हम equity measures कर रहे हैं. इतने दिनों से इनको मौका नहीं मिला था. जो सोशल कैटेगरीज हैं, जो फीमेल्स हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है, इनको एक मौका नहीं मिला था मेन स्ट्रीम में इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने का. तो हम क्या कर रहे हैं? उसको एक्सेस हम बढ़ा रहे हैं. सो सोशल पिरामिड में जो नीचे हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लाई हूँ, जैसे कि ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटी से मैंने लिए हैं. और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, बच्चे आपस में रूम शेयर नहीं करना चाहते हैं, हॉस्टल शेयर करना नहीं चाहते हैं, क्लास में सबसे मिलना नहीं चाहते, वो अपने ही ग्रुप के बच्चों से एक ग्रुप बना लेते हैं. तो इस तरह का ये जो होता है ना दूसरों के लिए, वो बहुत ही एक वेलकम मूव नहीं होता है. तो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स मैंने बता दिया आपको, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. और ये जो हायर एजुकेशन में 18 to 23 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है, जो कॉलेज लाइफ में इनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, वो उनको लाइफ लॉन्ग उसका असर होता है, इम्पैक्ट होता है. तो इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन में हमने डिस्कस किया कि हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स आपस में. और टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं? टीचर्स सभी पे ध्यान नहीं देते हैं, बैक बेंचर्स को तो कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. और एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या है, इनको लाइब्रेरी सर्विसेज ये सब उनको मालूम नहीं होता है, लेकिन हैंड होल्डिंग भी नहीं करते हैं. तो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन कुछ पॉलिसीज होते हैं, जैसा कि हम उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, फ्री शिप्स देते हैं, बुक ग्रांट देते हैं, रेमेडियल कोचिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, वो अलग कहलाए जाते हैं. अब हम देखते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो एक्सक्लूजन है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका क्या आउटकम होता है. तो यहाँ पे मैं कोट करूंगी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, व्हाटएवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली. अब एजुकेशन में आई अनकोट डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप इंस्टीट्यूशन में खुश हैं तो घर पे भी खुश, घर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका जो मेंटल बीइंग, वेल बीइंग होता है वो डिस्टर्ब होता है, और इंस्टीट्यूशन में आल्सो यू आर अ डिस्टर्ब पर्सन, यू कैन नॉट डू द सेम वर्क. सो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एट ऑल लेवल्स एंड फॉर्म्स लीड्स टू exclusion and exercises harmful effects on students being discriminated against each other. तो ऐसे जो harmful effects हैं उसके बदले में students क्लास आना छोड़ देते हैं, मिलना मिलाना छोड़ देते हैं, और फाइनली क्या होता है? उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है एग्जाम में फेल होने की वजह से या अटेंडेंस कम होने की वजह से. सो अल्टीमेटली वी हैव द ड्रॉप आउट रेशियो. तो एज टीचर्स हमको देखना है कि ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, इसके क्या कॉजेस हैं, हाउ टू एड्रेस ड्रॉप आउट. सो इन बोथ द केसेस ये जो ड्रॉप आउट है इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी ठीक नहीं है. अभी आपने किसी हमारे साथी ने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जब एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसकी फैमिली प्रॉस्पर होती है, समाज भी सुधरता है और देश भी तरक्की करता है. सो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डिस्कस्ड how it impacts the individual, institution, family, community and the wider society and finally the nation. तो इसका जो इम्पैक्ट होता है एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड आउटकम पे होता है. सक्सेसफुली स्टूडेंट्स आते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है. अगर दादा वे ड्रॉप आउट होता है तो सभी के लिए वो ठीक नहीं होता है. अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की. तो ये जो कोई भी शिक्षा नीति है वो एम्फेसिस देती है डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ every individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities but both foundational capacities of literacy and numeracy of higher order,
बोथ उनका सोशल, एथिकल, इमोशनल कैपेसिटीज में डेवलपमेंट होना चाहिए. So how many of you have gone through the NEP document? How many of you? Have you gone through the NEP document? Yes or no? No one? Now, for this discrimination, to address this discrimination, we have to take the steps for inclusive education. So NEP 2020, it has conveyed a structural change in education system which aims to make India the global knowledge superpower, ensuring equity and inclusion. Now, NEP 2020, it aims to ensure equity and inclusion through education by addressing all forms of exclusion. जो भी हमने देखे हैं ना डाइवर्सिटी में, वो सब एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है. और चैप्टर 6 में NEP पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रिकमेंडेशंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एट स्कूल लेवल, इस चैप्टर का नाम है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल है. और चैप्टर 14 में हम देखेंगे कि रिकमेंडेशंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें इसको अपनाना है और फॉलो करना है. और इस चैप्टर का नाम है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन. इज दैट ओके? और NEP with regard to inclusive education, it talks about technology enabled learning and blended learning, self-paced learning, and ABC, that is academic bank of credits. So can we have a look at the NEP document, please? Is the screen visible? All of you? Yes, madam. हाँ, NEP document visible है? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो जैसा कि हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, यहाँ देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 6 इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, ये हम नहीं देखेंगे, हम सीधे सीधे हायर एजुकेशन पे आएंगे और हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन. पेज नंबर, कैन एनीवन टेल मी व्हिच इज द पेज नंबर? पेज नंबर 41. कैन बी विजिट? ये देखिए इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन. तो यहाँ पर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को कैसे हम इंक्लूजन करें. फॉर दिस पर्पस हमको गवर्नमेंट में कुछ स्टेप्स लिए हैं. सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. एंड 14.4.2 पे स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, इसको ध्यान से देखिएगा. तो ये सारा मैंने प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, वो आप आगे देख सकते हैं. So have you seen the NEP document now with regard to student diversity and inclusive education? So this is about it, chapter 14. So what is inclusive education? It is a transformative approach and it aims to provide equal opportunities and support for all students regardless of their diverse needs. These diverse needs are creating a डाइवर्सिटी ऑल्सो. वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहाँ के स्टूडेंट्स के पास डिसेबिलिटीज हो, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो, जो कि हमने डॉक्यूमेंट में SED देखा था ना, वो यही है. कल्चरल डिफरेंसेस हैं और अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है, टुगेदर हम सबको मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं. ठीक है? सो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप का नहीं है, बट ये सभी के लिए है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इक्वल, इट कैन एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. और एक इक्विटेबल और प्रोग्रेसिव समाज बनाने में इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी बहुत सहायता कर सकता है. तो हम कैसे जाएं इंक्लूसिविटी की तरफ? आप सभी लोग जानते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को स्कूल में पढ़ना है, काम नहीं करवा सकते हैं. और हमारे कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसा कि हमारा देश सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसमें कि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल एंश्योर करना है. और बहुत सारे NGOs हैं, एक्टिविस्ट हैं और एजुकेटर्स हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. हमारे पास कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज. ये कुछ हमारी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पॉलिसीज एंड कमिटमेंट्स हैं, जिससे कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन लाने का प्रयास कर रहे हैं. द वे फॉरवर्ड, हम इंक्लूसिव फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? टीचर ट्रेनिंग, जैसा कि आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, इसी तरह सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देना है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में. इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, रैम्प्स, एलिवेटर्स,
accessible washrooms for students with disabilities, और करिकुलम जो हमारा है वो सभी के लिए एक ही दवाई है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ऐसा नहीं है। सिलेबस में भी कुछ उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए। और हमको सिलेबस तो हम बना लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बॉडी से, एनजीओ से कोलैबोरेट करके हम लोग कम्युनिटी कॉलेजेस भी चला सकते हैं। और इनइक्वालिटीज जो हैं हमारे समाज में, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अभी भी जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ हमारे चैलेंजेस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे देश में लाने के लिए। सबसे पहला है हमारे पास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस नहीं है, और दूसरा कि सारे टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, इसी वजह से टीचर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और हमारे समाज में एक स्टिग्मा है कि हैंडीकैप्ड है और या फिर उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, उस जाति को बिलोंग करते हैं, वो सोशल स्टिग्मा को दूर करना चाहिए। और हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम इट इज मोर मेमोरी बेस्ड, बस सिलेबस पढ़िए और पूरा मेमोरी की बुनियाद पे पर्चा लिख दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्लो लर्नर्स हैं, फास्ट लर्नर्स हैं, उनके लिए अलग अलग असेसमेंट का अप्रोच होना चाहिए। और इनइक्विटेबल एक्सेस है, स्टिल कुछ कम्युनिटीज में अभी भी विद्या का उतना रुझान नहीं है, खास तौर से जो रूरल एरियाज के विद्यार्थी हैं वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और हमारा जो पूरा एजुकेशन का पेडागोजी है वो टीचर सेंट्रिक है, जिसमें कि हम टीचर बस सिलेबस पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, ये विद्यार्थियों से उनका एक कनेक्ट नहीं होता है, ओनली वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। अब धीरे धीरे चल करके हम थोड़ा सा टू वे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हमारा अप्रोच होना चाहिए लर्नर सेंट्रिक, जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक चांस दे बोलने का, पार्टिसिपेट करने का, एक दूसरे को समझने का, जिसमें कि एक अच्छा माहौल थ्राइव हो सकता है। थोड़ा सा अंतर देखते हैं टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में। सब कुछ टीचर के हाथ में होता है यहाँ पर, जैसे कि हमारा करिकुलम कंट्रोल होता है, हम ही सिलेबस बनाते हैं, टाइम टेबल हमारी तरफ से बनता है, और सबको एक साथ हम एड्रेस करते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं अपना क्लास करके चले जाते हैं, जिसमें कि बयास की बहुत संभावना होती है। और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि लर्नर से हमारा एक कनेक्ट होता है, स्टूडेंट्स एम्पावर्ड होते हैं, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होते हैं, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हम हर मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं, और अमंग स्टूडेंट्स एक कोलैबोरेटिव लर्निंग को हम सपोर्ट करते हैं। और फ्लेक्सिबल पाथवेज होते हैं जो कि हम एबीसी में डिस्कस करेंगे, और हम हर एक की संस्कृति को हम सेलिब्रेट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कुछ उदाहरण है लर्नर सेंट्रिक मेथड्स के, डिस्कशंस कीजिए, ग्रुप वर्क दीजिए, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवाइए, प्रोजेक्ट वर्क्स करवाइए, और फील्ड एक्सपीरियंस भी करवाइए। तो नॉलेज ट्रांसमिशन में, नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हम अब जो कर रहे हैं वो नॉलेज ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच हम करेंगे तो ये मैं आगे भी आपको डिस्कस करती हूँ। तो अब 21वीं सदी में हमारे जो उच्च शिक्षा की संस्थानें हैं उनका क्या रोल है? इनका रोल होना चाहिए स्टूडेंट्स के जो इनर पोटेंशियल है उसको डेवलप करें, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, इस पे ज्यादा जोर दें, क्योंकि इसके साथ अगर करिकुलम जाए तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। So education needs to be all about empowering students in this rapidly changing world. Rapidly changing world, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले कंपटीशन लोकल था, फिर नेशनल हुआ, फिर ग्लोबल हो गया। यानी एक स्किल के हमें लोग चाहिए तो पूरी दुनिया भर में है, और कहीं भी दुनिया भर से कोई भी कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा कंपटीशन भी ग्लोबल हो गया है। तो 21वीं सदी के टीचर्स को भी बहुत ज्यादा मेंटरशिप और फेलिसिटेशन करने की जरूरत है। वो सिर्फ गुरु नहीं है बल्कि एक फैसिलिटेटर भी है, और स्टूडेंट्स के पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इज जस्ट अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ बटन, जैसा कि चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बार्ड है। तो इस सिनेरियो में टीचर्स को बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। टीचर्स का रोल देखते हैं, we should have a strong student teacher relationships, otherwise उनके पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है और हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो एक बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। और टीचर्स को चाहिए कि विद्यार्थियों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, एनकरेज करें, और उनका इमोशनल रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है। एवरी इंडिविजुअल इज लोडेड विथ इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन को कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे किसको छोड़ें, ये सारा उनका इमोशनल रिफ्लेक्शन भी, समाज में वो कैसे रहें एज एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन में कैसे हैं, ये सब देखना टीचर का काम है।
तो यूजीसी की एक स्कीम है मेंटोरशिप स्कीम, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपनाई है, लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मेंटोरशिप ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका प्रोग्रेस हम मॉनिटर कर सकते हैं, बोथ उनके प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक मैटर्स हम एड्रेस कर सकते हैं, उनको हम कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं और उनको हम उनकी सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। एक इफेक्टिव मेंटर को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और सबसे पहले वो खुद अपने में आप एक रोल मॉडल हो, ताकि विद्यार्थी उनके पास आए अपनी समस्याओं को लेकर और बहुत अच्छा हल इनको आपसे मिल सकता है। तो यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। ऐसा नहीं कि बस बच्चे को देखते ही आप सुझाव देना आप शुरू हो जाएं। सुझाव मत दीजिए, उसकी समस्या को सुनिए, समझिए, उसको एम्पैथाइज कीजिए और रास्ता दिखाइए कि विच इज बेस्ट फॉर हिम कैरियर वाइज एंड पर्सनल वाइज। तो एक टीचर को एक अच्छा मेंटर बनने के लिए, डाइवर्सिटी हैंडल करने के लिए, इंक्लूसिवनेस लाने के लिए मेंटर को सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए और मेंटल बहुत रिलायबल होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मेंटर को ढूंढते रहते हैं लेकिन मेंटर कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अवेलेबल फॉर गाइडेंस। एम्पैथाइज का तो मैंने बोला ही है, और मेंटर को उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ के अपने मेंटीज की समस्याओं को उनको गाइड करना है। तो कुछ मेंटर की जिम्मेदारियां भी हैं कि मेंटी की गोल्स क्या है, उसका कैरियर पाथ क्या है, वो समझें, समझ के फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करें। और सिर्फ सिलेबस पढ़ाना नहीं, लेकिन कुछ जानकारी उनको ज्यादा भी हम दे सकते हैं अपने मेंटीज को, कुछ सॉफ्ट स्किल्स दे सकते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज में उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और सिर्फ मेंटी या स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं उनसे नहीं, साल में एक बार या 2 बार कम से कम उनके पेरेंट्स से भी, जैसे पीटीएम्स तो कॉमन है स्कूल्स में, लेकिन कॉलेजेस में भी पेरेंट टीचर मीटिंग करना चाहिए और उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट रखना चाहिए। अब हमने कहा था कि डाइवर्सिटी में स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स की बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होता है, रिजल्ट्स इम्पैक्ट होते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्लो लर्नर्स के लिए रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जिसमें कि हम लोग स्पेशलाइज्ड टीचिंग या कोचिंग हम देते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ने में, लर्निंग में वीक हैं। इसको हम 3 प्रकार से दे सकते हैं: इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, फीडबैक टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो पहला मैं समझाती हूँ। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को जो बहुत ही पढ़ाई में कमजोर है, एक टीचर उसको ग्रूमिंग करते हैं, जो कि उसके सब्जेक्ट टीचर नहीं होते हैं, एक अलग अंदाज में उसको सिंपल मेथड में पढ़ाते हैं और उसको एक लेवल तक ले जाते हैं। पीयर सपोर्ट में क्या होता है कि उन्हीं के ग्रुप में से उस सब्जेक्ट के जो टॉपर्स हैं, जिसको ज्यादा कमांड है उस सब्जेक्ट में, उन्हीं से कहते हैं कि भाई आप इनको पढ़ाइए या समझाइए। ये हमने भी ट्राई किया था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जैसे हमारे एमबीए में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कॉमर्स, साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो अकाउंट्स के पेपर्स ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स उनको समझाते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स है, ऑपरेशंस रिसर्च है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स खुद ही अपने साथियों को समझाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक फ्रेंडली वे में उनको सीखने को मिलता है। और पढ़ाने के साथ साथ हमको चाहिए कि फीडबैक दें स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और उनके जो एक्चुअल सब्जेक्ट टीचर है। तो इसी को मैंने डिटेल में यहाँ समझाया है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी को लेकर के एक और भी समस्या ये है कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशन रखते हैं, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं देखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही कम ध्यान देते हैं अपने बच्चे की अचीवमेंट पे। दोनों ही इम्बैलेंस होता है, ध्यान रखना चाहिए। और इफेक्टिव फीडबैक कैसे दे सकते हैं कि राइट टाइम पे देना है, सेमेस्टर के शुरू में दीजिए। ऐसा नहीं कि फीडबैक आप रिजल्ट्स आने के बाद देख रहे हैं कि इस वजह से आपके बच्चे का फेलियर हुआ। आप राइट टाइम पे फीडबैक देते हैं एज मेंटर्स, तो सुधार की एक संभावना होती है, एक स्कोप होता है। और फीडबैक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, धमकी देने वाला या नेगेटिव, डिमोटिवेटिंग नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो होता है कि जहाँ स्टूडेंट आकर के डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करें, बल्कि वो वेलकम्ड और केयर्ड फॉर करें और उसको बहुत ही सेफ एटमॉस्फेयर लगे, सीखने की एक इच्छा हो, साथी अच्छे हों, टीचर्स भी सपोर्टिव हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आजकल हम वाईफाई कैंपस रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन बच्चे आपस में बात नहीं करते हैं, अपने आप में अकेले रहते हैं, और
केसेस ऑफ कंप्लेंट्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये भी देखते हैं कि आईआईटी के स्टूडेंट्स इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से, इमोशनल इंटेलिजेंस को वो लोग नहीं ठीक से कर पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। वो बहुत ही पेनफुल होता है, जिसमें कि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। स्कूल, कॉलेज, आईआईटी मेंस, आईआईटी जेईई, एडवांस्ड, ये सब करते हैं। तो इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि स्टूडेंट्स को कैसे करें। तो इससे पहले कि हम लोग ये करें, तो मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा एबीसी के बारे में दिखाती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स अच्छी तरह अपना रजिस्ट्रेशन एबीसी पोर्टल पे कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगी एबीसी का। Is the screen visible for Academic Bank of Credits? Yes? No, ma'am. Yes, 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 yes. ABC, Academic Bank of Credits? No, ma'am. Multiple. No, ma'am. ठीक No, है, ma'am. No, ma'am. मैं अभी शेयर करती हूँ दोबारा, जस्ट वेट। अभी शेयर करती हूँ। I think it's visible now. Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, yes, Thank you. yes. तो ये जो एबीसी हम कह रहे हैं वो एकेडमिक, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इसको रजिस्टर नहीं किया गया है। इंस्टीट्यूशंस हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड स्टूडेंट्स हैव आल्सो नॉट क्रिएटेड देयर एबीसी आईडीज। इसका बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग है। जो हम एनईपी में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट्स लेने के बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री विद ऑनर्स, ये सब स्टूडेंट्स ले सकते हैं और अपने क्रेडिट्स को इसमें जमा कर सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस से ये एजुकेशन को ड्रॉप कर सकते हैं, काम करके फिर पिक कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा ड्रॉप आउट रेशियो कम हो सकता है और साथ साथ जीईआर भी बढ़ जाता है। तो एबीसी में हम अपने एकेडमिक क्रेडिट्स को डिजिटली स्टोर करते हैं और फिर उसको स्टोर करने के बाद 7 ईयर्स तक हम लोग उसको रिडीम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम एमएससी का कोर्स कर रहे हैं तो वो 4 साल तक हमको कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ हम 7 ईयर्स तक अपने क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एबीसी एक नेशनल लेवल फैसिलिटी है टू प्रमोट करिकुलम फ्रेमवर्क और इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस HEIs with proper credit transfer mechanism to earn the degree. तो ये मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट एज वेल एज एनी टाइम, एनीवेयर, एनी लेवल लर्निंग को ये सपोर्ट करता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्टूडेंट सेंट्रिसिटी और लर्नर फ्रेंडली अप्रोच, जो मैंने लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बताया था, इसको ये सपोर्ट करता है और अपने हिसाब से स्टूडेंट्स अपने डिग्रीज को डिजाइन कर सकते हैं। ये है, और हम एज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसका अप्रूवल लेकर के यहाँ रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी यही है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को पहले रजिस्टर करना है, फिर स्टूडेंट से कहना है कि वो भी यहाँ पे आ जाए। तो एकेडमिक बैंक अकाउंट जैसे हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है उसी तरह होता है। तो इसको हम ओपन करेंगे पोर्टल में और अपने क्रेडिट्स को डिपॉजिट करेंगे और बाद में हम लोग अपने डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट एकेडमिक बैंक ऑफ अकाउंट। सबको समझ में आया क्या है? यस, एकेडमिक बैंक अकाउंट। चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ। Is the screen visible? ABC? Yes, ma'am. हाँ, Yes, यहाँ आप yes. देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ एनेबलिंग स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो आपको कोर्स चाहिए वो क्रेडिट्स वहां से लेकर के एकेडमिक बैंक अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अकाउंट स्टूडेंट भी और अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन को भी यहाँ से रजिस्टर करना है। तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर 31.34 करोड़ लर्नर्स ने रजिस्टर किया है और 2197 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और 885 इंस्टीट्यूशंस ने अपने क्रेडिट को अपलोड किया है। और यूनिक स्टूडेंट क्रेडिट अवार्ड्स ये 81.18 लाख हैं और 150.48 लाख एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं विद ABC मैप विद APAR ID। तो अब हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, राइट? अलीगढ़ कम्स इन उत्तर प्रदेश ना? यस Yes, ma'am. तो मैं Yes, कर्सर ma'am. लाऊंगी
तो सर कैन यू रीड उत्तर प्रदेश का जो एबीसी का डेटा है, प्लीज रीड इट। एनीवन? Total onboarded academic institutions. Screen is visible or not? No, ma'am. ABC Yes. is not visible. Visual, ma'am. Visual, ma'am. बोलिए 126. पढ़िए। 126. Yeah, very good. Next. Total ABC count हाँ 5-9 ऐसे बोलिए। 5923158. Okay. ABC accounts with credit data 2884947. Credit records with ABC IDs 3516270. This is about Uttar Pradesh. आप अपने अपने स्टेट का चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एज टीचर्स आप देख लीजिए और अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसे वो अपना एबी एकेडमिक बैंक अकाउंट ओपन करे और कैसे वो एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वीडियो हम देखें हाउ इट वर्क्स। देखिए, इंस्टीट्यूशन ए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स गेट डेपोजिटेड, क्रेडिट गेट्स रिडीम। एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में हम रिडीम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिए। So friends, this was the presentation about student diversity and inclusive education. We talked about what is the importance of higher education, the current scenario of higher education of our country, what is the status of student enrollments, and what is the student diversity and institutions of higher education, a brief about the ancient holistic learning institutions in ancient India, and today what was our position in those times in the world, and then what are the causes of student diversity, what are the consequences of student diversity, how to handle diversity, and then what is inclusive education, how to bring about inclusive education, and then how can ABC be helpful in bringing about inclusive education and handling student diversity. So this is from my side, and it is over to you for some questions. अगर आपको कोई presentation में से भी कोई PPT share करना होगा तो मैं दोबारा share कर सकती हूँ. So over to you now, and thank you all for your patient listening. So any questions, please? Thank you, ma'am. So friends, now the house is open for the question and answer session. So if anyone is having questions, we can take up. Ma'am will be answering the questions. चैट बॉक्स में तो सिर्फ थैंक यू आ रहा है. कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो हम डिस्कस कर सकते. Actually, ma'am, during your conversation, during your teaching, actually so much conversation have take place that we have no more question because you have already discussed with different presentation and slides. Okay, it was clear. Everything was clear. Yes, ma'am. Okay, no doubts. और no doubts, but further more information कुछ चाहिए आपको तो मैं शेयर कर सकती हूँ. मैं आपको ABC रेगुलेशन भी शेयर करके दिखा सकती हूँ. Would you like to see? Yes, ma'am. ठीक है.
Yes, ma'am. Can you see a letter? Yes, ma'am. Yes. So Yes, this is yes. through Swayam, the students can earn the credits up to 40%. See here, 40% of the total courses being offered in a particular program in a semester through online learning courses offered through Swayam platform. These credits they can accumulate in the academic bank of credits. Okay. So I will show you the ABC regulation. So now this is a Swayam regulation where the students can earn their degrees, their credits up to 40%. So I will show this. यहाँ लिखा है, these will be called as credit framework for online learning courses through study webs of active learning for young aspiring minds, Swayam regulations 2021. So they apply to all universities. This is the credit transfer framework regulation. I hope it is clear. And then most importantly, क्योंकि मैंने ABC का presentation किया है, आपको ABC का regulation ध्यान से देखिएगा. So this is the ABC regulation, Gazette of India. तो यहाँ पर आप देखेंगे, there is an eligibility for institutions also and for the students also. All enrolled students can register for the academic bank of credits. This is the UGC notification. This is called as establishment and operation of academic bank of credits in higher education regulations 2021. तो यही मैंने आपसे शेयर किया था, what is an academic credit and how to register. All this I shared. Okay, objectives also I shared. स्टूडेंट सेंट्रिसिटी मैंने यहीं से अपना पीपीटी एबीसी वाला बनाया था, ये हिंदी में भी है, आप लोग उसको देख सकते हैं. गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. Yes, this is the letter, this is the gazette notification, and this is the letter. Okay, for academic bank of credits regulations 2021. So this is the thing. So over to you now. अगर इसमें और कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं about student diversity and inclusive education. And I also shared the National Education Policy document and what it talks about that theme, that also what steps the higher education institutions should take and what steps the government of India will be taking. Like जैसे हमको ramp बनाना है, student centric facilities, physical infrastructure भी हमको create करना है institutions में, and then our approach should be inclusive in nature for assessment of learners as well as for teaching learning process. And we should try to control the dropout and try to increase the GER, because we envisage to increase the GER by 50% by 2047. Viksit Bharat. So any more questions, participants? Ma'am, I think since you were having a very interactive session, so most of the doubts have been cleared during the session. Okay. Please share ABC document in WhatsApp group. Ma'am, we have a request from one of the participants to share the ABC document with us. Okay, I will share. Sir, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप ग्रुप में डाल दें. Yeah, ABC sure. regulation. I will be sending my number to you, ma'am. I have your आप phone number and yeah, I have your WhatsApp number. I will be sending my number. मैं आपको शेयर कर. Yeah, sure, why not? ठीक है. Okay, so on behalf of Aligarh Muslim University Center Murshidabad and UGC MMTTC AMU Aligarh, I would like to extend a very heartful thanks to our resource person, Professor Sameen Fatma Madam, for giving a very interactive, practical and insightful lecture today. And I hope that all of us will benefit a lot from the discourse of the day. Thank you, ma'am, and thanks to all the participants who participated in this session. We will be having another session from 5:30. Okay. So thank you, you, Dr. Atif Jilani. It was nice meeting you all online. So have a good time, good day. So take care, all of you. So can I leave? Yes, ma'am. Sure. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.